غزہ پر قبضے کا اسرائیلی منصوبہ عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کے خلاف ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے انسانی حقوق کے مطابق اسرائیل کو دو ریاستی متفقہ حل کے تحت غزہ پر قبضہ ختم کر دینا چاہیے۔ مظلوم فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم جاری، 24 گھنٹے کے دوران مزید 61 فلسطینی شہید، 363 زخمی ہو گئے۔ غزہ میں مزید 5 فلسطینی بھوک کے باعث دم توڑ گئے۔ غذائی قلت سے اموات کی تعداد 217 ہو گئی، مرنے والوں میں 100 بچے بھی شامل ہیں۔ غزہ میں شہادتیں 61,430 تک جا پہنچی۔ سانحہ 9 مئی کے 2 مقدمات انسداد دہشت گردی۔ عدالت لاہور آج محفوظ فیصلہ سنائے گی۔ ملزموں کے خلاف جناح ہاؤس کے قریب پولیس کی گاڑی جلانے اور تھانہ شادمان نظر آتش کیس کا مقدمہ درج ہے۔ ملزمان میں ڈاکٹر یاسمین راشد، شاہ محمود قریشی، عمر سرفراز چیمہ، میاں محمود الرشید، اعجاز چودھری، صنم جاوید اور عالیہ حمزہ شامل ہیں۔ اور وادی نیلم کے علاقے کیل میں مارکہ حق میں تاریخی فتح اور جشن آزادی کی مناسبت سے شاندار نیلم کلچرل فیسٹیول۔ شرکاء نے مارکہ حق میں تاریخی فتح پر افواج پاکستان کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ گلگت دنور نالے میں مٹی کا تودہ گرنے سے اموات کی تعداد 8 ہو گئی۔ ترجمان حکومت گلگت بلتستان کے مطابق رضاکار واٹر چینل کی بحالی کا کام کر رہے تھے، مٹی کا تودہ گرا۔ حادثے میں 15 کے قریب رضاکار تودے کے نیچے دب گئے، 3 سے زائد زخمی۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کا نوٹس، امدادی کارروائیاں تیز کرنے کا حکم۔ کراچی میں راشد منہاس روڈ پر 7 ڈمپرز جلانے کی تحقیقات۔ کراچی پولیس چیف نے 4 رکنی تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دے دی۔ ڈی آئی جی ویسٹ عرفان بلوچ تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ مقرر۔ تحقیقات کے دوران پیش رفت کی روزانہ رپورٹ دینے کی ہدایت۔ غزہ کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس۔ اسرائیل کا غزہ پر قبضے کا فیصلہ مزید خون ریزی کا راستہ ہے، برطانیہ اور فرانس نے متنبع کر دیا۔ امریکی سفیر نے کہا کہ حماس یرغمالیوں کو رہا کر دے تو یہ جنگ آج ختم ہو سکتی ہے۔ پاکستان نے غزہ پر قبضے کا اسرائیلی منصوبہ مسترد کر دیا۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب عاصم افتخار کا سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب، کہا غزہ میں جاری اسرائیلی مظالم فوری ختم ہونے چاہیے، غزہ میں نسل کشی روکنے کے لیے مشترکہ کوششیں کرنی چاہیے۔ اور بارش سے متاثرہ دوسرے ون ڈے میں ویسٹ انڈیز نے پاکستان کو 5 وکٹوں سے ہرا دیا۔ ڈک ورتھ لوئس میتھڈ کے تحت ویسٹ انڈیز کو 35 اوورز میں 181 رنز کا ہدف ملا۔ ٹیم ویسٹ انڈیز نے 5 وکٹوں کے نقصان پر ہدف حاصل کر لیا۔ محمد نواز اور حسن علی کی 2 وکٹیں، 3 میچز کی سیریز 1-1 سے برابر۔ آخری میچ منگل کو ہوگا۔ آریوالا میں سی سی ڈی سے مقابلے میں ڈکیت گینگ کے 4 کارندے مارے گئے، 3 فرار۔ فائرنگ کے تبادلے میں اہلکار زخمی ہوا۔ سی سی ڈی کی گاڑی کو بھی نقصان پہنچا۔ ملزمان چوری، ڈکیتی اور راہزنی کی سنگین وارداتوں میں مطلوب تھے۔ پولیس نے ہلاک ملزمان کے قبضے سے اسلحہ اور لوڈر رکشہ برآمد کر لیا۔ بھارت وشوا گرو بننا چاہتا ہے، حالانکہ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں۔ جارحیت کا پہلے بھی منہ توڑ جواب دیا، آگے بھی ایسا ہی کریں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا امریکہ میں پاکستانی کمیونٹی سے خطاب، کہا بھارت خطے میں عدم استحکام پیدا کرنے کی ضد پر قائم ہے۔ کسی بھی وجہ سے 2 طرفہ تصادم بہت بڑی غلطی ہوگی۔ بھارتی خفیہ ایجنسی کی ٹرانس نیشنل دہشت گرد سرگرمیوں میں شمولیت عالمی سطح پر تشویش کا باعث ہے۔ ٹرمپ کی اسٹریٹجک لیڈرشپ نے بہت سے جنگوں کو روکا۔ کشمیر بھارت کا اندرونی معاملہ نہیں، ایک نامکمل عالمی ایجنڈا ہے۔ بیرون ملک پاکستانی عزت و وقار کا سرچشمہ ہے۔ یہ برین ڈرین نہیں بلکہ برین گین ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دورہ امریکہ، امریکی عسکری قیادت سے ملاقاتیں۔ سینٹ کام کی چینج آف کمانڈ تقریب میں شرکت۔ سینٹ کام کمانڈر جنرل کوریلا کی ریٹائرمنٹ کی تقریب میں شریک ہوئے۔ فیلڈ مارشل نے سبکدوش جنرل مائیکل ای کوریلا کی پاک امریکہ عسکری تعلقات کو مضبوط بنانے میں خدمات کو سراہا۔ امریکی چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل ڈین کین سے ملاقات، دورہ پاکستان کی دعوت دی۔ دوست ممالک کے ڈیفنس چیف سے بھی ملاقاتیں۔
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव से टेलीफोनिक राब्ता, आर्मीनिया के साथ होने वाले तारीखी अमन मुआहदे पर मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म ने अमन मुआहदे में अमरीकी सदर के किरदार को सराहा, कहा अज़रबैजान के सदर की जुर्रतमंदाना क़यादत में खत्ते में अमन कायम हुआ। मैंने वादा लिया था आपसे, वही वादा पूरा करके आया हूँ आपके पास। खैमे में मुझे आवाज़ें अपनी शलवार की तरह जी जी काले रंग। उस दिन मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने जब ये खबर पड़ी कि यू हैव अचीव्ड थर्ड पोजीशन, आई थिंक वी आर ऑल वेरी प्राउड ऑफ यू। वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब दुरुस्त साबित। बलूचिस्तान के पसमानदा इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले इकरामुल्लाह की रावलपिंडी बोर्ड के तहत मैट्रिक में तीसरी पोजीशन। शहबाज शरीफ ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस बुलाकर मुबारकबाद दी। इकरामुल्लाह काकड़ का ख़ानदान 2022 के सैलाब में शदीद मुतासर हुआ। शहबाज शरीफ की बलूचिस्तान सैलाब मुतासरीन के कैंप में इकरामुल्लाह से मुलाकात हुई। बच्चे ने आला तालीम की ख्वाहिश ज़ाहिर की। वज़ीर-ए-आज़म उसे रावलपिंडी ले आए, तालीमी अखराजात बर्दाश्त करने का ऐलान किया। इकरामुल्लाह ने कहा कि शहबाज शरीफ की तरह मुल्क की खिदमत करना चाहता हूँ। मुझे जो अपॉर्चुनिटी मिली है आपकी वजह से मिली है। आपका मेरे ऊपर कर्ज है, तालीम अदा करूँगा और एक कर्ज मैं अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए ज़रूर दूंगा। जितने मेरे अंदर पोटेंशियल हो, अपने कौम के लिए हमेशा खड़ा रहूँगा। कराची के खूनी डंपर ने एक घर पर कयामत ढा दी, मोटरसाइकिल को कुचल डाला। बहन भाई जाँ बहक, वालिद की हालत तशवीशनाक। 22 साला महनूर की अगले माह शादी थी। घर वाले जहेज की खरीदारी में मसरूफ थे। खुशियों और कहकहों से गूंजते घर में सफ़े मातम बिछ गई। अहले खाना कहते हैं हमारा सब कुछ चला गया। महनूर अपनी पसंद से शॉपिंग कर रही थी। अहमद का पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनने का ख्वाब भी चकनाचूर हो गया। रबिया में इनकी शादी थी, वो फर्नीचर का सामान इनका जमा हुआ, मास्टर कर चुकी थी। ये बच्चा पढ़ रहा है, ये बराबर में स्कूल इसी में कहा भाई यही कि इंसाफ चाहिए हमें। तो हम 7 बहन भाई हैं, जिसमें से 2 चले गए और ये है कि ये डंपरों को बंद करा जाए। सिंध हुकूमत और डंपर एसोसिएशन के मुज़ाकरात कामयाब। शर्जील मेमन से मुलाकात के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने सोहराब घोट और राशिद मिनहास रोड के धरने खत्म कर दिए। डंपर्स मालिकान की मुद्दत में 2 मुकदमा दर्ज कर लिए गए। शर्जील मेमन ने कहा सिंध हुकूमत ट्रांसपोर्टर्स के जायज़ मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करेगी। डंपर मालिकान डंपर्स में कैमरा ट्रैकर के साथ इंश्योरेंस और ड्राइवर्स का लाइसेंस यकीनी बनाएं। शहर कायद में रवां बरस भी ट्रैफिक हादसा थम न सके। होशुरबा इदादो शुमार सामने आ गए। रवां साल ट्रैफिक हादसात में 548 अफराद जाँ बहक, जबकि जख्मियों की तादाद 8,244 तक पहुंच गई। जाँ बहक होने वालों में 52 खवातीन शामिल। बच्चे और बच्चियों की तादाद 71 तक जा पहुंची। इमरान खान के अपने जहन की अक्कासी ये होगी कि जितना ज़्यादा वो अनरेस्ट कर सके, जितना ज़्यादा मुल्क को डिस्टर्ब कर सके, उसके लिए लोग अब जो है कोई चीज़ चलाने के लिए तैयार नहीं है। उसके लिए लोग अपने मुल्क के खिलाफ चलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसने सोची समझी साजिश के तहत इंटरनेशनली पाकिस्तान को डैमेज करने की कोशिश की। तो ये चाहते हैं कि सब मिलकर, देखिए सियासी इख्तलाफात अपनी जगह पे, लेकिन जब इस तरह के कौमी त्यौहार हों उसमें आप सब लोगों ने मिलकर जो है वो चीज़ें सेलिब्रेट करें। बानी पीटीआई के लिए लोग अब जलाओ गहराव के लिए तैयार नहीं हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की कड़ी तनकीद। कहते हैं बानी पीटीआई चाहते हैं कि वो मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा बेचैनी फैलाएं। जश्न आज़ादी की तकरीबात तमाम सियासी जमातों के लिए हैं। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, कौमी त्यौहार सबको मिलकर मनाना चाहिए। सिंध हुकूमत जश्न आज़ादी की तकरीबात तहसील और ज़िले की सतह पर मना रही है। लाहौर की पहली टूरिज्म शाहराह वाघा हेरिटेज कॉरिडोर की तामीर मुकम्मल। शाहराह पर अब तक 2,850 मिलियन रुपए खर्च किए जा चुके। भारत से आए सिख यात्रियों को पाकिस्तानी सकाफत, सयाहत और खूबसूरती के मुनफरिद रंग नजर आएंगे। खबरदार होशियार, मुल्क में डिजिटल तावान मांगने के वाकयात बढ़ने लगे। वायरस के जरिए डिजिटल तरीके से अकाउंट हैक करके तावान मांगा जाता है। साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के मुताबिक हैकर्स ब्लू लॉकर वायरस के जरिए इदारों से तावान मांगते हैं। साइबर हमलों से कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल और फाइल मुकम्मल ज़ाया हो सकती है। NCCIA ने 39 अहम वजारतों और इदारों को खत लिखकर खबरदार कर दिया।
मुल्क के किस सूबे में कितने गधे तादाद सामने आ गई। गधों की तादाद में पंजाब तमाम सूबों से आगे। इदारे शुमारियात के मुताबिक पंजाब में गधों की तादाद 24,03,000 तक जा पहुंची। सिंध 10,81,000 के साथ दूसरे, जबकि खैबर पख्तूनख्वा 7,82,000 गधों के साथ तीसरे नंबर पर। बलोचिस्तान में गधों की तादाद 6,30,000 हो चुकी। गजा की सूरत हाल पर आज अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास होगा। इजलास में इसराइल की जानिब से गजा सिटी का कंट्रोल संभालने के ऐलान के बाद की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। गजा पर कब्जे का मंसूबा, नेतन्याहू पर अंदर से भी दबाव बढ़ने लगा। इस्राएली वज़ीर ख़जाना की नेतन्याहू को हुकूमत गिराने की धमकी। बसलेस स्मोट्रिच कहते हैं हुकूमत गिराकर नए इंतखाबात करवाएंगे। इस्राएली वज़ीर ख़जाना ने सिक्योरिटी काबीना के इजलास में नेतन्याहू को धमकी दे दी। कहा, हम सब कुछ रोक कर लोगों को फैसले का इख्तियार दे सकते हैं। हमें यकीन नहीं कि इसराइल फैसला कुन फतह की तरफ जा सकेगा। पाकिस्तान की गजा पर इसराइली कब्जे के मंसूबे की शदीद मुखालफत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा को फ़ोन। दो तरफ़ा ताउन और इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का गजा की संगीन इंसानी सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। इसहाक डार ने इसराइली मंसूबा, बैनुल-अक़वामी कवानीन और सलामती कौंसिल करारदादों की खुली खिलाफ वर्जी करार दे दिया। जनूबी वज़ीरिस्तान में कबायली अमादनी का फितनाल खारिज के खात्मे तक सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ ताउन के अज़्म का इजहार। महसूद और बरकी कबाइल के अमायदीन का ग्रैंड जरगा। IGFC खैबर पख्तूनख्वा साउथ की बतौर मेहमानी खसूसी शिरकत। कबायली अमायदीन ने पाक फौज और FC की देर पामन के लिए कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। IGFC ने फितनाल खारिज के खिलाफ जंग में कबायली अवाम की बेपनाह कुर्बानियों को सराहा। मॉनसून बारिशों का सिलसिला जारी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर मजीद बारिश का इम्कान। खिता पोटोहार और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में बारिश की पेशगोई। दरिया सिंध में तरबेला पर निचले दर्जे का सैलाब। दरिया सिंध में पानी के दबाव के बाइस खैरपुर के कच्चे में 10 से जायद गांव डूब गए। अलास्का में तय होने वाली ट्रंप प्यूटन मुलाकात। यूरोपीय ममालिक की जानिब से मुलाकात का खैर मकदम। फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया, इटली, पोलैंड, फिनलैंड और यूरोपीय कमीशन की सदर का मुश्तरका बयान जारी। यूरोपीय ममालिक का कहना है यूक्रेन को इलाके छोड़ना पड़े तो उसे नेटो रुकन बनाया जाएगा। इलाके छोड़ने का मुतालबा इसी सूरत माना जाएगा जब अफ्रीकन इलाके छोड़ने पर आमादा हों। एबटाबाद के नवाही इलाके में तेंदुए ने मकामी शहरी की 7 बकरियां मार डाली। इलाके में खौफ व हिरास। मुतासरा शख्स को लाखों रुपए का नुकसान। महकमा वाइल्ड लाइफ खूनखार जानवरों को आबादियों से दूर रखने में नाकाम है। वतन को हम हसीन से हसीन तर बनाएंगे। इस्लामाबाद को और भी खूबसूरत और दिलकश बनाने का मिशन। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इस्लामाबाद में मुनफरिद मंसूबे पर काम शुरू कर दिया। मंसूबे के तहत इस्लामाबाद के अहम मकामात को आज़रबाईजान के दारुल हुकूमत बाकू की तर्ज पर सजाया जा रहा है। जश्न आज़ादी में सिर्फ 3 रोज बाकी। जश्न आज़ादी मनाएं 24 न्यूज़ के संग। आप यौम आज़ादी के लिए किस तरह की तैयारियां कर रहे हैं? अपनी तैयारियों को करें सबके साथ शेयर। जश्न आज़ादी पर अपनी वीडियोस 24 न्यूज़ को भेजें। हम आपकी तस्वीर और वीडियोस को पाकिस्तान तक पहुंचाएंगे। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर।